खुश आमदी दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे क्वेश्चन फॉर द कॉप सीरीज में। हमारे साथ हैं हमारी रेडियो कॉप रचना सोनी जी। रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस वंस अगेन। Thank you, Tawfiq. Thank you for having me. Looks like the restrictions have relaxed. दुख दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, something like that. Yes and no, yes. There are certain aspects of relaxation, but कुछ चीजें जो revise भी हुई है. Mm-hmm. Let's get the question started. तो ठीक है, फिर थोड़ा fair हमें enough. खुलासा होगा. So the very first question we had was from Jyotsna Jyoti ji, who had asked a very relevant question that while we know that interstate travel is restricted, how does Canberra come into that equation, or ACT for that matter? Tawfiq, travel तो देखो allowed नहीं है, especially for holidays Mm-hmm. purpose के लिए. Mm-hmm. आप depend करता है कि वो किस reason से travel करना चाहती हैं. The reason Mm-hmm. has to be there. अगर वो काम से travel कर रही है, तो yes, she can travel. डिस्टेंस पे कोई रोक नहीं है. किसी से मिलने जाना है उनको, अगेन आई वुड से कि विद इन न्यू साउथ वेल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शी इज ट्रैवलिंग इनटू अ डिफरेंट स्टेट, तो शी हैज टू हैव अ वेरी वैलिड रीजन टू ट्रैवल. Fair enough. So I am going to visit a friend in Canberra. Is this a valid reason? It could be family, but I'm making it a little more casual in terms of a reason. I would say it is very casual. So no. Okay. Yeah, interstate travel अभी नहीं शुरू हुई है. Regional travel भी अभी नहीं शुरू हुई है. That's why. That's the only reason. Fair enough. The thing is कि अगर आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रहे हैं या फिर आप किसी की केयर करना चाहते हैं जो बीमार है, yes, वो अलाउड होगा. और for work reasons. Within the city तो relax हुए हैं rules. So from 2 people now it's gone up to 5 people. So who are those 5 people who can visit? Is that including children? हाँ जी, बिल्कुल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन है वो 5. फॉर एग्जांपल मैं और मेरे हस्बैंड और 3 चिल्ड्रन, वी कैन गो. हम 5 हैं टुगेदर. उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते एक बार में. कितनी बार जा सकते हैं आप घर पे, उस पर कोई रोक नहीं है. किसी की भी विजिट पे आप जा रहे हैं, किसी भी फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं, तो आपके घर में 5 बार लोग आ सकते हैं, बट 5 लोगों से ज्यादा नहीं एक बारी में. एंड दैट डेफिनेटली इंक्लूड्स चिल्ड्रन. यस. Fair enough. पर एक वक्त पे रूल ये था कि अगर आप 2 एडल्ट्स हैं और कितने भी चाहे बच्चे हैं साथ में वो जा सकते हैं, तो लेकिन अब that doesn't apply. It has to be a maximum of 5. Yes, it doesn't apply now. Yes, it has to be maximum of 5 including children. Okay, so आप जो कह रही थी रिलैक्स नहीं हुए, रिवाइज हुए, this is what it meant. Yes. Okay. All good. Thanks for clarifying that. That was important. Coming on to businesses, एक pertinent सवाल आ रहा है कि businesses are at discretion to open or whether not to open. But वैसे ही फिर थोड़े sensitive businesses होते हैं जहाँ food handling होती है. तो for example एक restaurant हो गया या फिर convenience stores हो गए. यहाँ पे क्या rules apply होते हैं? हर बिजनेस का अपना डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से वो ऑपरेट करना चाहते हैं, कितनी बड़ी उनका कितना बड़ा उनका एरिया है, कितने लोग वो एक बार में अकोमोडेट कर सकते हैं. उनको लग रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है शॉप्स में, बट अगेन इट्स द मैटर ऑफ that they're following the health advice and also the social distancing policy and उनका अपना discretion. Restaurants can have up to 10 people at one given time in their business. How is that supposed to be interpreted? उनका साइज बहुत छोटा होगा रेस्टोरेंट का, और कुछ होंगे जो बहुत बड़े साइज के रेस्टोरेंट्स होंगे, वो फिर भी 10 ही लोग रख सकते हैं. It's a point that needs clarification. 10 ही लोग रख सकते हैं. 10 आपके उस रेस्टोरेंट में, कैफे में, शॉप में, whatever the case may be, अगर 5 होते हैं तो आप 5 ही अलाउ करोगे एक बारी में. So keeping in mind कि 1.5 meters का social distancing rule follow हो at all times. Social distancing तो civil obedience पे dependent है. How has the government put in place rules and regulations for businesses to ensure that their customers are safe in the environment that they are calling their customers in this case their shops? That makes more sense. Now in saying that, when restrictions ease हो रहे थे, आपने अगर देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अपने गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस किस तरीके से हर बिजनेस अपने आप इंटरप्रेट करता है, मेकिंग श्योर कि उनके कस्टमर्स सेफ हैं. तो हर बिजनेस को फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस दैट कम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फॉलो करते हुए अपने वर्क प्लेस को, अपने बिजनेस को सेफ करना है कंज्यूमर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए.
तो इट विल अगेन आई वुड से बेस्ड ऑन बिजनेसेस डिस्क्रिप्शन कि वो किस तरीके से उसे रन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। आखिरकार ओनस उनके ऊपर होगा कि कैसे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस वापस गेन किया जाए, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस गेन किया जाए। अगेन आई वुड रिकमेंड दी बिजनेस, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, कि वो इस चीज को खास ध्यान दें। रचना जी, कमिंग बैक ऑन टू द विजिटेशन एस्पेक्ट, मुझे एक वल्नरेबल कैटेगरी के बारे में ही डिस्कस करना है कि हमें एल्डरली और जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वाले लोग हैं उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। हाउ इज द न्यू रूल्स अप्लाइड to the visitation and the care of elderly and people with pre-existing conditions? Yes, it's a good question, तौफीक। एल्डरली के लिए रूल तो सेम ही अप्लाई होता है अभी भी, लेकिन आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस अगर हैं तो उनको अपने ध्यान में रखें। दूसरी चीज, एनीवन हु इज ओवर द एज ऑफ 70, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेना है जाने से पहले। अगर आप खुद बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार था तो मेक श्योर कि आप लोग ना जाएं, ना मिले उनसे। फॉर अस, अगर आप एज ब्रैकेट देखा जाए तो 70 से ओवर और प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस, ये बहुत मायने रखते हैं। Fair enough, Rashna ji, that was great. शुक्रिया, आपने जो है ट्रैवल से रिलेटेड और विजिटेशन से रिलेटेड और मोर सो बिजनेसेस से रिलेटेड काफी सारी जो है इंफॉर्मेशन पे क्लैरिटी दी। Lastly, what has your experience been with the citizens and the members of the society? How are they responding to the constantly changing rules? Are they making the cops' lives easy or hard? That's a very good question, Tawfiq. हमारी जिंदगी कभी आसान नहीं हो सकती। But anyway, jokes apart, I think community has been बहुत 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 हेल्पफुल रही है कम्युनिटी, क्योंकि हमेशा सारी कम्युनिटी ने साथ दिया है और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। I would say सारे रूल्स अभी तक फॉलो हुए हैं और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया आज इस मकाम पे पहुंची है ये कम्युनिटी की वजह से ही है। That is very well said. And coming from a cop, it means a lot that you are taking the credit away from your hard work and giving on to the society, which is really heartening to know. तो रचना जी, थैंक यू। इसी नोट पे हम आज की जो है इस गुफ्तगू को अंजाम पर लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर दोबारा कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कम्युनिटी से रिलेटेड और कम्युनिटी रिलेशनशिप विद कॉप्स से रिलेटेड। थैंक यू तौफीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी गुफ्तगू मैक्लोर रचना सोनी जी से। अगले हफ्ते फिर जुड़ते हैं क्वेश्चन फॉर द कॉप्स पे। तब तक सुनते रहिए कहते सुनते रेडियो जीन, ओनली ऑन 89.32 GLF FM, हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक। धन्यवाद।